तो हम इसमें ये स्टडी कर सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें क्या चेंज है, जिससे कि उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम कन्वर्ट कर चुके हैं, शेप दे चुके हैं मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द रिसर्च हाईलाइट, दिस रिसर्च विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च। अगर आप इसको करते हो ये आपकी अच्छी इंपॉर्टेंट रिसर्च होगी। दिस रिसर्च हाईलाइट्स करंट चैलेंजेस एंड प्रेडिक्ट्स फ्यूचर ट्रेंड्स। इसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि करंट चैलेंजेस क्या आ रहे हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। फ्यूचर ट्रेंड्स को भी हम इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। On the basis of this topic, the another research topic will be the role of financial management in enhancing organizational sustainability, a strategic perspective। जैसे अभी हमें 2037 तक सस्टेनेबिलिटी का गोल चल रहा है, तो हम टॉपिक ये भी ले सकते हैं द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एनहांसिंग ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी। इन दिस टॉपिक we can focus on how financial decisions contribute to long-term sustainability and responsible business practices. It examines budgeting, investment, and risk management strategies that support environmental, social, and governance goals. The focus on aligning financial decision with sustainable organizational performance. We can also take another title, Financial Management Practices and their impact on business in dynamic economic environment. In this study, we can research that how effective financial planning, capital allocation, and risk strategies help business withstand economic uncertainty. It assesses the role of financial policies in improving strategy, adaptability, and recovery capability. Or we can say in this the emphasis on building financial dynamic organization. Next one we can take effectiveness of financial management strategies on organizational profitability. In this topic, we can analyze how financial planning, cost control, and investment decision and financial reporting influence overall profitability. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अभी हमने जो ये हमारा सिलेबस है ना, ये सारे टॉपिक्स हम अगर पढ़ेंगे तो हमें आ जाएंगे। हमें क्या दिक्कत आएगी कि इन टॉपिक के बेस पे हमें रिसर्च कैसे करनी है, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ। समझ रहे हैं आप सभी? Yes, sir. Yes, sir. So you need to know how we can take a topic or any research problem from this syllabus. The next topic may be capital structure decision and firm performance. So this research examine how companies choose between debt and equity financing. कैसे कंपनी डेब्ट इक्विटी फाइनेंस चूज करती है, एंड हाउ दोज डिसीजन अफेक्ट परफॉर्मेंस। और अगर किसी कंपनी ने डेब्ट इक्विटी का डिसीजन चूज किया है तो उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे और ओवरऑल सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इट स्टडीज रियल फाइनेंशियल डाटा फ्रॉम डेवलपिंग मार्केट एंड
capital assets differ from advanced economy. The focus is on identifying optimal capital structure. Next, we can take the topic working capital management and its influence on business efficiency. अगर आप ये देखेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या होता है, एक्विजिशन ऑफ फंड एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. तो ये सारे के सारे अभी तक मैंने आपको 5 टॉपिक बताए हैं. दीज आर ओनली एंड ओनली ऑन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एक्विजिशन फंड करना और उसको बेस्ट यूटिलाइज करना. डेब्ट इक्विटी में भी यही होता है. So working capital management is also another one aspects of the financial management. We can take working capital management and its influence on the business efficiency. In this topic, we can analyze a sector-based analysis. एक particular sector का आप analysis कर सकते हो उसमें. आप इसमें देख सकते हैं कि how managing short-term assets and liability affect operational efficiency and liquidity, because liquidity is directly connected with working capital management decisions. Next, you can take financial risk management system in banking or other sector. Asset liability management practices. You can take the topic credit risk management and financial performance. You can take the topic financial behavioral finance and managerial decision making. You can take the topic integration of artificial intelligence in financial management decision. कि जो हम ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेते थे उसमें इंटीग्रेट करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, सर मशीन लर्निंग को. सर एक बार रिपीट करना, ये इंटीग्रेटेड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन. अभी तो जितना आपके सिलेबस चलेगा ना, मैं आपको लगभग 500 प्लस टाइटल बता दूंगा इस तरीके के. उसमें से आप चूज कर सकते हैं. हमने डिस्कस अब 2 घंटे की क्लास में क्या करना है कि हमने टॉपिक करने के बाद फिर ये देखना है इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च के क्या क्या पॉसिबल टॉपिक्स हैं. इससे आपको रिसर्च करने का पता लग जाएगा कि हमें करना क्या है 3 साल में. तो ये पता लग गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो टॉपिक है उसके ऊपर हम ये इस तरीके से रिसर्च फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके इसके चैलेंजेस चेक करना, उसका फ्यूचर डायरेक्शन चेक करना, उसके रोल चेक करना सस्टेनेबिलिटी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, मतलब इस तरीके से. और वो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा की हेल्प से होगा. कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन. यस हाँ जी सर, मुझे कुछ पूछना था. जैसे हम जी, कोई भी बोलिए. टॉपिक लेंगे उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं तो हमें सेकेंडरी डाटा तो है ही है, तो क्या पीएचडी में प्राइमरी डाटा का होना भी मस्ट है या ऑप्शनल होता है? आप सेकेंडरी डाटा पे भी कर सकते हैं अगर आपका रिलायबल सोर्स है. जैसे अगर मैं इंश्योरेंस की बात कहूँ, आपने सारा डाटा IRDA से लिया है. अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात कहूँ, या तो उस पर्टिकुलर शेड्यूल्ड बैंक जो भी है उसकी वेबसाइट से लिया है या आपने RBI की साइट से लिया है. लेकिन उसके साथ साथ आपको आजकल हाइब्रिड मोड पे चल रहा है. प्राइमरी डाटा तो आपको लेके चलना पड़ेगा, अच्छा. क्योंकि सेकेंडरी डाटा पे कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकेंडरी डाटा बेस्ड बहुत ज्यादा रिसर्च है. ओके सर. अब जो चल रहा है वो प्राइमरी डेटाबेस ही चल रहा है. क्वेश्चनर बना के आपको क्वेश्चनर भरवाने पड़ेंगे और उसका सिनॉप्सिस का जो बनाने का सिस्टम है वो बहुत ज्यादा. हमारे यहाँ सिनॉप्सिस अगर 10 सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन होते हैं उसमें 2 और 3 ही अप्रूव होते हैं. उनको दोबारा रीसबमिट करने के लिए बोला जाता है उनको. तो आपको 6 महीने पे काम करना है ना, जो 6 मंथ आपको काम करना है, आपको
शायद मतलब मेरी स्ट्रेटजी यही होती है, पुराने स्टूडेंट्स को भी पता है, कि आप कोशिश करो एक टॉपिक आइडेंटिफाई कर लो इस बीच, और आप 6 महीने के अंदर अंदर अपने सिनॉप्सिस बनाने शुरू कर दो, ताकि जैसे ही आपका फाइनल एग्जाम होगा, बिना टाइम वेस्ट किए आप अपना सिनॉप्सिस सबमिट कर सकते हैं। ठीक है सर, इसमें केस स्टडी भी हो सकती है किसी कंपनी की? I needed that guidance from you, Dr. Mukesh, is that can you just one day, share across to us that how exactly do you search the papers of finance in that website called Shrot Ganga? Because I was trying to search it up, but I wasn't getting anything related to how I was looking out for. Maybe I might be using it in a wrong way. तो एनी केस अगर आप किसी सैटरडे को या संडे को आप वो पूरा प्रॉपर वेबसाइट कैसे आप पेपर रिसर्च कर रहे हो, उसका ओपन एसेस है नहीं है, इफ यू कुड जस्ट गिव अस द गाइडलाइंस ऑन दैट। हेलो मैम, योर वॉइस। हेलो, कैन यू हियर मी सर? Can you repeat again, please? I was just telling you, sir, that in case if we can have a class where you can show us or share the screen of Shrot Ganga and show us how exactly have you been searching the topic, what exactly do you read from each of the research paper, so that we get an idea that how it is exactly working on. रिसर्च पेपर तो मैम आपको जैसे शोध गंगा से आप थीसिस उठा ले सकते हैं, आप डायरेक्ट उसमें से स्कोपस में ओपन एक्सेस पेपर मिलते हैं, वहां से वो पेपर डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हैं अपने डोमेन के, जो भी आपका रिसर्च एरिया है, जिस भी सेक्टर के ऊपर आप पर्टिकुलर सेक्टर पे करना चाहते हैं, अगर आपका सेक्टर आइडेंटिफाई हो चुका है। अभी मैं एक लिंक भेज रहा हूं आप सभी को, वीडियो ऑन करेंगे प्लीज सभी। जसवीर जी, आपने तो कोर्स कर लिया ना वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का? यू आर ऑन म्यूट। म्यूट है जसवीर जी आपका? यस। हेलो। यस सर। सर हमारा कंप्लीट हो चुका है कोर्स वर्क। हाँ, नहीं कोर्स वर्क तो कंप्लीट अभी चल रहा है आपका। आपको एक पेपर मैंने कोर्स करने के लिए कहा था, जिसका अपने सर्टिफिकेट भी आपका तो कंप्लीट हो चुका है ना, उसके बारे में बता रहा हूँ अभी मैं। जी सर जी। ये IIT वाला कह रहे हो सर, गुवाहाटी? हाँ, IIT गुवाहाटी वाला। जी सर। तो आप लोगों को ना, जिन्होंने नहीं किया है, अभी साथ साथ करना है। मैं एक ग्रुप में लिंक सेंड कर रहा हूँ, वो इसलिए नहीं मैंने भेजा था कि फिर वो गलत ढंग से इनरोल हो जाता है, उसमें फिर रेक्टिफिकेशन करनी मुश्किल हो जाती है। उसमें इनरोल सबने करना है। क्लिक ऑन द लिंक। I sent the link in group। पहले मैं बता देता हूँ आपको, ये IIT गुवाहाटी का या IIT कानपुर या IIT मुंबई का कोर्स है, जिसमें टोटली आपको ऑनलाइन ये सिखाया जाएगा कि रिसर्च करनी कैसे है। अगर तो आप इसको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो तो इसका कोई पैसा नहीं लगता। अगर आपको इसका सर्टिफिकेट भी चाहिए तो जिस भी IIT का ये कोर्स है उसमें 1000 रुपीज आपके डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। 1000 रुपीज इसकी फीस है। आपको प्रॉपर इसकी असाइनमेंट देनी है। उसके बाद असाइनमेंट देने के बाद आप लोग क्या करोगे, इसका 3 घंटे का पेपर होगा। वो पेपर आप अप्लाई दोगे तो ये वहां से आपका IIT से सर्टिफिकेट आएगा। ये NPTEL के थ्रू है। तो ये कोर्स आप करोगे ना, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से बता देंगे IIT के प्रोफेसर्स की रिसर्च करनी कैसे है।
how to do the research. तो click on the स्वयं. On कर लिया आपने? Just a minute, sir. Then click on all courses. Click on all courses. Then on the left side, you will see the search bar. On the left side, you will see the search bar. Right here in the search bar, research and methodology. Research and methodology. Research, only research लिखना. मेरे को बेसिक बायोमेडिकल हो गया. मैं कुछ उसका research and methodology. I'm sharing the link again. सर इसमें भी खुला हुआ है, इसमें ये आया हुआ सर, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक वाले 2-3 आए हुए हैं, प्रोफेसर सुबोध, प्रोफेसर सरिता आनंद, कई सारे प्रोफेसर्स के आए हुए हैं सर. ये है इसमें, ये आपका IIT मद्रास का कोर्स है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का 8 वीक का कोर्स है. मैंने ग्रुप में सेंड किया है लिंक. IIT मद्रास का है ये. ओके सर, जस्ट अ मिनट. इसमें आपको सारा ये सिखाया जाएगा कि लिटरेचर सर्वे कैसे करना है, आपको डाटा एनालिसिस कैसे करना है, टेक्निकल राइटिंग कैसे है, क्रिएटिविटी इन रिसर्च, डिजाइन इन एक्सपेरिमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाएगा. टोटली 8 वीक का कोर्स है, इसको कर लो, बहुत अच्छा कोर्स है. ये 19 जनवरी से 19 जनवरी से स्टार्ट होगा आपका. ये ऑन हो गया तो आपका कोर्स? यस सर. इस पे ज्वाइन पे क्लिक करें. क्लिक ऑन ज्वाइन. जैसे जैसे मैं स्टेप बताऊंगा वैसे ही करना है. अगर आपने गलत स्टेप कर दिया तो वो प्रॉब्लम आपका हो नहीं पाएगा इनरोल. क्लिक ऑन ज्वाइन एंड देन ज्वाइन विद योर जीमेल. जो आपका जीमेल है उससे ज्वाइन करें. तो आपकी सारी असाइनमेंट भरी गई थी, कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? नहीं सर, दिक्कत तो नहीं आई सर कोई. और 3 घंटे का जो कोर्स हुआ था, जो पेपर हुआ था आपका, एग्जाम हुआ था, उसमें कोई जी. प्रॉब्लम? वो ऑनलाइन मोड में था सर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें किसी तरह की. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे सारे? जी, MCQ बेस्ड पेपर था. और इसमें जो जितना भी असाइनमेंट है, वो जो क्वेश्चंस हैं, उनको समझ के एक बार लर्न करना है चीजों को बस. अच्छा. तो उसमें से मेरे ख्याल 40% पेपर तो असाइनमेंट से ही आ जाता होगा. जी 30 से 40% के नियर अबाउट आ जाता है. और बाकी जो वीडियो लेक्चर सुनते हैं उसमें से आता है? जी, वो दोनों मोड में चलता है सर. ऑडियो मोड में भी, ऑडियो विजुअल मोड में भी, और वो नंबर भी चलते हैं साथ के साथ उसमें. और इसमें जो आपके रीजनल लैंग्वेज में भी सब कुछ आ जाता है? नहीं सर, मीडियम तो इंग्लिश ही रहता है इसमें पूरे कोर्स में. नहीं, अगर हम उसको सिलेक्ट करें ना नीचे से, वो आपको रीजनल मोड में लैंग्वेज में भी दे देता है सारी उसके इंफॉर्मेशन. तो ये तो सर मैंने नहीं किया, क्योंकि इंग्लिश ही उनकी ऐसी थी ना, वो मतलब इजी टू अंडरस्टैंड थी, एकेडमिक लैंग्वेज ही थी सारी वो. जी. ये मैंने ना जो इन्होंने सर्टिफिकेट अटेन किए हैं, ये मैंने ग्रुप में भेजे हैं, एक बार देखो.
2 स्टूडेंट ने किए थे इस बार। ये नीचे आपका मतलब जो स्टैंप लग के आएगी वो आईआईटी मद्रास की आएगी। ये आईआईटी मद्रास का है, वो आईआईटी गुवाहाटी का किया था इन्होंने। इस तरीके से सर्टिफिकेट आएगा आपका। और ये कल को गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत वैल्यूएबल होता है, जो लोग अप्लाई करते हैं ना। और सबसे बड़ी बात, जो आईआईटी के प्रोफेसर आपको जो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के टूल्स हैं सब कुछ बहुत अच्छे से समझाएंगे इसमें। तो मैं आपके इंटरनल जो मार्क्स लगाऊंगा इस सर्टिफिकेट के बेस पे लगाऊंगा, इंटरनल मार्क्स सबके। जी सर। तो अभी आपकी नेक्स्ट क्लास भी शुरू होने वाली होगी, 12:30 होगी, है ना। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, किनको बोला था मैंने करने के लिए? रितु को बोला था सर, स्कोप। यस। वीडियो ऑफ कर दे चाहे।